Back. Let's head back to Pune. In focus, the two-day Gyan Sangam, a two-day retreat for getting PSU banks back on track. Sajit Mangat in conversation with the banking secretary. Let's cut in live. We're just going to cut across to that. We have with the Secretary of Financial Services, Mr. Hasmukh Adia. Sir, thank you very much for joining us on CNBC TV 18. To begin with, can you give us the latest numbers on the Jan Dhan? As of yesterday, more than 10.3 crore new accounts have been opened under the PMJDY, starting from 26th of August till date. So also there's some surveys which have been done which says that some of the nearly 30% of those accounts have multiple accounts or are the second account. Can you give some idea of how many of those accounts may be multiple accounts? We don't know the exact number, but yes, it is possible, because initially we had estimated that about 7.5 crore households are not having a single account, and that's why we had fixed up a target of 7.5 crore. But after that, we understood that there were multiple accounts opened, and that's why we had to extend our target of opening new bank accounts. And now there is no particular target, but our target is now centering around कि हाउसहोल्ड कवरेज कितना है, व्हाट इज द हाउसहोल्ड कवरेज. तो उसमें हाउसहोल्ड कवरेज में अभी तक हमने जो सर्वे किया है हमारी बैंकों के माध्यम से, उसमें ये निकल रहा है कि अभी तक 98.4% households are already covered. So now we are not having a target of opening bank accounts. Now we are covering each and every household. Okay. So the remaining households which are unbanked so far, how do you propose to cover them? Because that would be a big challenge going forward. देखिए, बाकी 1% जो रहेगा उसके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है लास्ट 1% को कवर करना. बिकॉज इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश में जब इतनी चर्चा हो रही है फिर भी अभी वो हाउसहोल्ड जो है वो जगह नहीं है. हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए एक चैलेंज राउंड करें कि जैसे ही हम 99% पे पहुंच जाएंगे, हम न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को ये कहेंगे कि अभी भी अगर किसी का अकाउंट नहीं खुला है तो प्लीज सरकारी मशीनरी के द्वारा या बैंकों को संपर्क करके अपना अकाउंट खुलवाइए. सो दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू. वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट. हमारे पास एक हाउस होल्ड का अकाउंट नंबर का लिस्ट ही है, बट फिर भी अगर कोई हाउस होल्ड छूट जाता है तो उसके लिए तो हम 99% से आगे जाना तो मुश्किल है. सर, ऑफ द 10.3 crores accounts which have been opened, how many RuPay cards have been issued to these accounts? About 80% of the new accounts opened have already got their RuPay card, which is a big achievement. In fact, this number is going up every day now. And actually there is a time lag. अकाउंट खुलवाने के बाद वो रुपए कार्ड प्रिंट करने जाता है उनके नाम का स्पेसिफिक, और फिर वो आता है, फिर उनको वो दिया जाता है. सो देयर इज अ टाइम लैग कि अकाउंट खोले और रुपए कार्ड मिले, उसमें एक 15 से 20 दिन का एक टाइम लैग होता है. तो जैसे ही ये कैंपेन पूरी होगी उसके 20 दिन के अंदर सबके सब 100% को रुपए कार्ड मिल जाएगा. Sir, there was some issues with the private sector banks saying that RuPay card is not internationally accepted and hence it's a little difficult for them to issue RuPay cards, and also the fact that they have existing agreements with international gateways like Visa and Mastercard, and that would compromise those agreements and targets which have been decided among themselves. देखिए, हमारे पास तो ऐसी कोई कंप्लेन आई नहीं है, बट सो व्हाट, रुपए कार्ड अगर इंटरनेशनली यूजफुल नहीं है तो हमारे देश में तो यूजफुल है. जितने भी पॉइंट ऑफ सेल है POS, मतलब कि किसी भी स्टोर में आप चले जाइए, जहां पर भी वीजा और मास्टर कार्ड एक्सेप्ट होता है वहां पर रुपए कार्ड भी एक्सेप्ट होता है. तो इससे बड़ी बात क्या होगी. अब ये जो हमारे रूरल एरिया में रहते, अर्बन एरिया में रहते जो लोग हैं, उनको तो कोई भी ATM से पैसे उठाना है और कहीं भी शॉपिंग करने के लिए उसको यूज करना है तो वो वैलिड है बिल्कुल ही. अब वो तो कोई सिंगापुर और अमेरिका जाने वाले नहीं है जनधन बेनिफिशियरीज, तो हमारे लिए इट इज गुड इनफ रुपए कार्ड. बट हमारे पास ऐसी कोई प्राइवेट बैंकों की कोई कंप्लेन आई नहीं है. सो व्हाट अबाउट हाउ मच अमाउंट इज देयर इन दिस 10.3 crores अकाउंट? अबाउट मोर देन 7,500 crore ऑफ डिपॉजिट्स हैव बीन डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट्स. It is a big number. I don't think banks ever expected कि इतना डिपॉजिट्स आएगा. But फिर भी it is a fact that more than 50% accounts are with zero balance. Okay, so you're saying that more than 50% accounts are with zero balance. And what is the government doing to ensure that there is some kind of transaction that takes place?
देखिए, उसके लिए हमने एक जो इंसेंटिव दिया है इंश्योरेंस पॉलिसी का, जो एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस की 1 लाख रुपए की पॉलिसी है रुपए कार्ड के साथ, वो तभी वैलिड है जब इसमें ट्रांजैक्शन होते रहेंगे। हर 45 डेज में एक ट्रांजैक्शन होता रहेगा। तो इसीलिए वो एक इंसेंटिव है गरीब आदमी के लिए कि मैं कम से कम 50 रुपया जाके जमा कर दूं, उसमें बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को दे दूं कि मेरा 50 रुपया जमा ले लो। तो ऐसे थोड़ी सेविंग की हैबिट होगी लोगों की। एक तो ये है। दूसरा, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार अलग अलग विभाग को कह के, अभी तो हमने एलपीजी में शुरू किया है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन एलपीजी। 1 जनवरी से पूरे देश में अगर आपको अब एलपीजी की सब्सिडी चाहिए तो उसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट देना होगा और कॉमर्शियल रेट पे आप सिलेंडर खरीद करेंगे और जैसे ही आप खरीद करेंगे दूसरे दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा सब्सिडी का। ये हमने जो डीबीटीएल का सिस्टम किया है, वैसा ही हर एक डिपार्टमेंट को भारत सरकार जब इंस्ट्रक्शन देगी और हर डिपार्टमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, तब इसमें ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। नरेगा के जो स्कीम है उसमें भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है कि नरेगा का सब पेमेंट बैंक अकाउंट के माध्यम से होगा। बट नरेगा में पहले से ही ये प्रस्तावित था बैंक अकाउंट से देने का, तो कुछ लोगों के अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी है जिसके द्वारा पेमेंट हो रहे हैं, लेकिन वो भी स्लोली पोस्ट ऑफिस के बदले में वो बैंक के अकाउंट में भी वो लोग चूज कर सकते हैं कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में जमा करा देना। क्योंकि एक बेनिफिट ये होता है कि उसमें थोड़ा क्लियरिंग में टाइम लगता है पोस्ट ऑफिस में। बैंक में जब आपका पैसा जमा होता है वेजेस का, तो नेक्स्ट डे आप उठा सकते हो। इसलिए लोग धीरे धीरे नरेगा का पैसा भी बैंक के अकाउंट के माध्यम से उठाएंगे। So that's the banking secretary talking about the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in Pune, of course, for that 2-day retreat, saying since the launch of that scheme on 26th of August, 10.3 crore accounts have been opened, which is significantly more than the 7 crore accounts being targeted by the government. The banking secretary conceding that there perhaps has been a multiplication of accounts, and the government's new focus under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is to increase household coverage and not just target new bank accounts.